have this paper 2 General Medicine of March April 2021. The clinical case is a 46-year-old female with rheumatic heart disease with a fever, shortness of breath. So, rheumatic heart disease itself is indicative it's infective endocarditis. Okay, fever, shortness of breath, macular lesions, and splenomegaly. So, macular lesions also can be actually confirmative for infective endocarditis and splenomegaly also. So, provisional diagnosis, it is infective endocarditis, subacute bacterial endocarditis, okay, on rheumatic heart disease. So, it's a rheumatic heart disease, we know it's given in the question, but with the shortness of breath and macular lesions and splenomegaly, we can also say it's the infective endocarditis. So, investigations, we know we take three blood cultures, that is before antibiotics are started. We need to take three blood cultures and need to study the three blood cultures. CBC we do for anemia and leukocytosis, because WBC is always risen in infections. And then ESR, CRP for infections, they will be elevated. It is infective, right? So ESR, erythrocyte fermentation rate, and CRP, C-reactive protein, shall be elevated in infective endocarditis. Then we check for peripheral smear in echocardiography, that is ECG actually. In that we could do either TTE or TE. In that we'll see vegetations. Urine may see microscopic hematuria. And renal functional tests for kidney failure will check, like creatinine and all, glomerular filtration rates, etc. And rheumatoid factor. So these are the blood tests we'll do. So what if a patient comes to you with infective endocarditis? What all tests will you give it to her? You'll just say three blood cultures, and then we'll do the blood investigations. Blood investigations such as CBC, complete blood count, and leukocytosis and anemia and all. For ESR and CRP, because it's infection. Similarly, we will check for rheumatoid factor, and then peripheral smear, and then we'll do ECG of heart, that is echocardiography, TTE and TEV. That we'll see vegetations in the septum. Again, lastly, we'll also do renal function test and urine routine. Urine routine and renal function tests are also important. Don't forget them. Pathogenesis, we know that valves get damaged because of infection. So, in the damaged valves of the heart, we'll see platelet fibrin thrombus. Fibrin, like platelet, they combine with the fibrin and they form a thrombus. Then bacteremia causes colonization of the thrombus. So this thrombus, that is platelet fibrin, due to damage of walls, platelet will come from the blood and fibrin protein. They will join to form platelet fibrin thrombus, and in that thrombus there will be bacteremia. So the colonization of bacteria into the thrombus will happen, and that is called vegetation formation. Then in this vegetation formation, immune complex deposition will occur, which will cause vasculitis, glomerulonephritis, septic embolization. Okay, so what all will be caused? Vasculitis, glomerulonephritis. So that is why urine function tests and urine routine and renal function tests are important. And then septic embolization. Management: how to manage this patient? We manage by giving antibiotics, because actually the whole cause is bacteria, right? So based on culture, we give prolonged IV antibiotics. Empirical, we give penicillin plus or ceftriaxone, that is the empirical, with gentamicin. So to cover the broad spectrum, penicillin, ceftriaxone, third cephalosporins, or taxifim plus gentamicin. Then we treat the heart failure and surgery. If large mutations, emboli, valve destructions are there, we can do intervention. Complications of infective endocarditis, as we know, heart failure is there. Systemic emboli, the emboli can occur, and then it can travel to brain, spleen, kidney. Brain, spleen, kidney, hence splenomegaly. Then glomerulonephritis, kidney can be, we know. So that is why we do urine routine test, and we do the kidney, that is urine, and then we do urine, like we do kidney routine and we do urine, uh, we are renal function test and we do urine routine. Okay, so that is glomerulonephritis. Then there could be abscess formation and valvular rupture. Valve can rupture because valves are damaged.
Because of that, fibrin plus platelet that they form, then that is bacteremia occurs. So they get damaged, and due to the damage of the fibrin platelet thrombus, that is become into vegetation when it gets infested by bacteria. Uh, so valvular damage can happen, heart failure can happen. There could be thrombus formation, sorry, not thrombus, emboli formation, and emboli can systemic go like brain, kidney, spleen. Okay. Then cross-sectional spinal cord thoracic level. So we need to label anterior horn, posterior horn, lateral horn for sympathetic, lateral horn for sympathetic, anterior horn, posterior horn, then lateral horn for sympathetic, then anterior median fissure, posterior median sulcus. Anterior is fissure, posterior is median sulcus. Anterior median is fissure, posterior is sulcus. PS. So posterior is sulcus, anterior is fissure. Spinothalamic tract, corticospinal tract, and dorsal columns. Okay. Coming on to match the following acute coronary syndrome, we see ST elevation. Coronary syndrome, we know that heart attack, right? MI basically. Then we have aortitis, that is seen in syphilis, aorta inflammation. Then we have thyrotoxicosis, that is seen in Graves' disease. Whipple's triad is seen in hypoglycemia. Hiatus hernia is seen in Barrett's esophagus. Vitamin K deficiency is what do we see? Vitamin K deficiency. INR is elevated. So acute coronary syndrome (ST) will be elevated. Aortitis is seen in syphilis. Thyrotoxicosis is seen with Graves' disease. Whipple's triad is seen in hypoglycemia. Then hiatus hernia is seen in Barrett's esophagus. Vitamin K deficiency will cause elevated INR. Short notes. Acute liver failure. Acute liver failure causes of mainly viral hepatitis and drugs such as paracetamol and toxins. Features jaundice, encephalopathy. Jaundice meaning hemoglobin, okay, and then bilirubin is accumulation. Then encephalopathy, liver failure, coagulopathy and hypoglycemia. These are the four features of acute liver failure. So encephalopathy and jaundice everybody remembers, but hypoglycemia we have to remember, and we have to remember coagulopathy because vitamin K and then insulin related hypoglycemia. Okay, so hypoglycemia and coagulopathy are also seen in acute liver that is caused by drugs and acute viral hepatitis. So that is acute liver failure. Acute liver failure will lead to cirrhosis and then it will lead to hepatic encephalopathy, jaundice, chronic jaundice actually. But here it is acute, so we'll just say acute jaundice, then encephalopathy, then hypoglycemia, then because of vitamin K, coagulopathy. Now coming to atrial fibrillation. Atrial fibrillation, we have features of irregularly regular pulse. So it could be either regular irregular and could be irregularly irregular. So here we have irregularly irregular pulse and palpitations seen all over the body like fingers and all. Diagnosis ECG, we see absent P waves and irregular RR. Absent P waves and irregular RR interval are seen in atrial fibrillation. Peripheral vascular disease, like peripheral artery disease, causes atherosclerosis, diabetes, smoking. Features are claudication, like pain will occur. Even if you try little bit of exercise, after some time pain will occur. That's called claudication. Then we have rest pain and we have ulcers. So these are the features of peripheral artery disease or peripheral vascular disease. Mostly seen in old age people, atherosclerotic people, like smoking, diabetes, and all. Features are rest pain, claudication, and most importantly, ulcers could be seen. Atrial fibrillation, this irregular pulse along with palpitations. Diagnosis ECG will have absent P waves and irregular RR interval. So atrial fibrillation, what is seen? Absent P waves and irregular RR intervals. Atrial fibrillation, in that we have a treatment protocol. For that, we have to correct rate and correct rhythm. For rate correction, we have drugs such as beta blockers like metoprolol, atenolol, digoxin, and amiodarone. And for rhythm control, we have electrical cardioversion. See, for rhythm control, we have electrical cardioversion
And we have sinus rhythm amiodarone. So amiodarone is actually in the rhythm control, and for rate control, like we have to reduce the heart rate because it's going bonkers. So target heart rate is less than 110 per minute, that is lenient, or less than 80 per minute, that is strict. So for that, we give non-DHP calcium channel blockers such as diltiazem, verapamil, that is. But then again, that we can't give that in heart failure. Okay, heart failure, if it occurs in infective endocarditis, we remember it's complications. So what is the complications of infective endocarditis? Vascular rupture, valvular rupture, sorry, emboli, systemic, could go into spleen, kidney, and brain. And as we remember, heart failure. So we can't give calcium channel blockers in heart failure. Calcium channel blockers such as tritiazem, verapamil, and then beta blockers such as metoprolol and atenolol. Metoprolol and atenolol. These are all for rate control. For rhythm control, we have electrical cardioversion and we have amiodarone. Amiodarone for pharmacological cardioversion. Okay, then we have anticoagulation as well for stroke prevention that we could give. Acute management is cardioversion. Cardioversion you give by the hemodynamical unstable and hemodynamical stable. Hemodynamical unstable, hypotension, shock, pulmonary edema, like we know that. So for that we have immediate synchronized DC cardioversion, DC, yeah, not AC. I remember that. Anticoagulants, again, just read it. So what are the based on CHA2DS2 VAS score? VAS score is visual acuity score. Visual acuity score, like pain no. So for that it is like 10 human faces are there. So for that, like oral anticoagulants, warfarin, INR 2:3. NOACs, that is called apixaban, rivaroxaban, dabigatran. You saw an emergency. Score more than equal to 2 for men, more than equal to 3 for women. If its pain is more than this, for that we give anticoagulants like abigatran, rivaroxaban, okay, apixaban, rivaroxaban, dabigatran. और हाँ, हार्ट फेलियर है ना, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं दोगे, या दोगे डिजॉक्सिन दोगे, क्योंकि डिजॉक्सिन एक ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि अलग है, ठीक है। सेडेंटरी पेशेंट्स में यूज़ करते हैं और स्पेशली हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में डिजॉक्सिन देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वेरापेमिल डिटियाज़ाम नहीं दिया जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है ना। ओके, और हाँ, वास्ट पेन का क्या था, मोर देन 2 मेन में, मोर देन 3, क्योंकि मेन आर मोर एक्चुअली प्रीडोमिनेटली क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर के लिए वो हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में एज कम्पेयर टू वुमेन। सो रेट कंट्रोल हो गया, less than 110 per minute or less than 180 per minute for strict, lenient for 110। मतलब मान लो यंग पेशेंट है, ठीक है, अच्छा है, BMI कंट्रोल में है, नॉन स्मोकर है, नॉन डायबिटिक है, नो कॉमोर्बिडिटीज है, तो मस्त 110 से कम ठीक हो गया, 10 चलेगा वो। और रेट कंट्रोल में अपन क्या देंगे, बेसिकली रेट कंट्रोल में देंगे कार्डियोवर्जन, DC कार्डियोवर्जन, और फार्माकोलॉजिकल में बीटा ब्लॉकर्स और डिजॉक्सिन अगर हार्ट फेलियर है। फार्मा, और अगर हार्ट फेलियर नहीं है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, वेल्पेमेट्रिलिज्म और बीटा ब्लॉकर जैसे कि एटिनोलोल, ठीक है। फिर आते हैं रिदम कंट्रोल पर। रिदम कंट्रोल में देंगे अपन वो देंगे, क्या कहते हैं, एम्यूडोरोन। और फिर एंटीकोएगुलेंट्स में देंगे एपिक्साबान, रिवोरोक्साबान, जो कि NOACs है, ठीक है ना। NOACs याद रखना, नोट्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये था एट्रियल फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट। और एट्रियल फिब्रिलेशन का फीचर क्या है, इरेगुलर पल्स और पाल्पिटेशंस, पल्स और पाल्पिटेशन, ठीक है ना, याद रखना। सो इरेगुलर पाल्पिटेशंस, इरेगुलर पल्स और पाल्पिटेशंस। और इसका डायग्नोसिस करते हैं ECG से। ECG में क्या दिखता है, RR इंटरवल्स इक्वल नहीं होंगे और एब्सेंट P वेव होगा, तो एट्रियल फिब्रिलेशन AF होगा, एब्सेंट P वेव और इरेगुलर, और क्या कहते हैं, इरेगुलर RR वेव्स, RR मतलब, ठीक है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज कॉजेज हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज, स्मोकिंग। फीचर्स हो गया क्लॉडिकेशन, पेन रेस्ट और अल्सर्स। अमीबिक डिसेंट्री क्या होता है, इसमें डायग्नोसिस करते हैं स्टूल माइक्रोस्कोपी और सीरोलॉजी। ट्रीटमेंट हो गया मेट्रोनिडाजोल प्लस डिलोक्सानाइड फ्यूरेट। सो क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं अमीबिक डिसेंट्री में, प्लस डिलोक्सानाइड फ्यूरेट। फिर हो गया अक्यूट पल्मोनरी एडिमा।
अक्यूट पल्मोनरी एडिमा का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। एडिमा है ना तो फ्यूरोसेमाइड दे दोगे, डायूरेटिक्स लूप डायूरेटिक है, याद रखना पल्मोनरी एडिमा में लूप डायूरेटिक देते हैं। ओके, नाइट्रेट्स, मॉर्फिन, ट्रीट द कॉज। एडिमा का कॉज हो सकता है, उसको ट्रीट करो। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। कॉज ऑफ जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी। तो लिम्फेडेनोपैथी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? टीबी, कोल्ड अल्सर, वो कोल्ड नोट्स हो सकता है ना वो सब, तो वो हो सकता है। फिर लिम्फोमा, HIV, टीबी, HIV, लिम्फोमा, ठीक है। फिर आते हैं इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर में हो सकता है क्या क्या? आउटिक स्टेनोसिस हो सकता है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, यानी ESM, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, आउटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होता है। हाइपरट्रोफिक मायोकार्डियोपैथी कार्डियोमायोपैथी में हो सकता है इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, आउटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। आउटिक स्टेनोसिस हो गया, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया दोनों, और हो गया हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। स्टेनोसिस दो हो गया तो उसमें इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। तो देखो स्टेनोसिस हो रहा है ना, तो मतलब हार्ड नहीं हो रहा है, तो सिस्टोल में इजेक्शन में मर्मर सुनाई दे रहा है, क्लिक सुनाई देगा शायद, तो वहां पे आ गया आउटिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मर्मर। Ejection systolic murmur is a crescendo decrescendo systolic murmur that begins after S1 and ends before S2. S1 के बाद S2 के बीच, पहले दोनों S1 S2 के बीच में क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो सिस्टोलिक मर्मर होता है। सिस्टोलिक मर्मर है, इजेक्शन सिस्टोलिक, इसीलिए सिस्टोलिक कह रहे हैं क्योंकि इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है। और S1 के बाद S2 के पहले होता है क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो, मतलब पहले टकाक और फिर बाद में थोड़ा चकाक। क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो मतलब पहले क्रेसेंट फिर डिक्रेसेंट। Okay, caused by turbulent flow across semilunar valves or through the ventricular outflow tract. वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट मतलब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, दोनों के बाद वाला वाल्व, उसको कह रहे हैं सेमीलूनर वाल्व्स। कॉमन कॉज क्या क्या है? आउटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, और HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा आउटिक स्क्लेरोसिस भी हो सकता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल हाई आउटपुट स्टेट्स में हो सकता है, जैसे कि एनीमिया और प्रेगनेंसी में हो सकता है आउटिक स्टेनोसिस के जैसे। अनीमिया और प्रेगनेंसी में हो सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, फीवर में भी हो सकता है। ऑस्कल्टेटरी फीचर्स में क्या क्या था? टाइमिंग और मिड सिस्टोलिक, कहने का मतलब इजेक्शन टाइप है, इसीलिए इसको कह रहे हैं इजेक्शन। सिस्टोलिक है मतलब सिस्टोल में आ रहा है S1 S2 के बीच में। ओके, ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग में मिड सिस्टोलिक है तो इजेक्शन सिस्टोल, ठीक है, इजेक्शन टाइप है, मिड सिस्टोलिक है, क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो है। बेस्ट हेड होता है आउटिक स्टेनोसिस में, कहाँ पे? राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। पल्मोनरी स्टेनोसिस में लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। रेडिएशन होता है आउटिक स्टेनोसिस में टू द कैरोटिड्स। एसोसिएटेड फाइंडिंग्स होता है सॉफ्ट या फिर एब्सेंट S2। सीवियर आउटिक स्टेनोसिस में थ्रिल में बी प्रेजेंट। एसोसिएटेड फाइंडिंग क्या होता है? सॉफ्ट या फिर एब्सेंट S2 सीवियर आउटिक स्टेनोसिस में। स्पेशल मैन्यूवर्स होता है HOCM में क्या होता है? इंक्रीज मर्मर ऑन स्टैंडिंग या फिर वाल्साल्वा मैनूवर पे। ओके, डिक्रीज मर्मर ऑन स्क्वाट विद स्क्वाटिंग। आउटिक स्टेनोसिस में इंक्रीज मर्मर विद स्क्वाटिंग और डिक्रीज विद स्टैंडिंग। तो आउटिक स्टेनोसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। अगर एग्जाम में आया तो आउटिक स्टेनोसिस लिख देना चुपचाप, आउटिक स्टेनोसिस लिख देना और बोल देना रेडिएशन टुवर्ड्स कैरोटिड, और बोलना राइट इंटरकोस्टल सेकंड स्पेस पे आ रहा है सर। और ये भी बोलना कि स्टैंडिंग पे बढ़ता है, स्टैंडिंग पे बढ़ता है, स्क्वाटिंग पे बढ़ता है आउटिक स्टेनोसिस में, और HOCM में स्टैंडिंग पे बढ़ता है और स्क्वाटिंग पे घटता है। इजेक्शन फ्लो, इजेक्शन सिस्टोल मर्मर इज अ क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो मर्मर हर्ड इन मिड सिस्टोल यानी S1 S2 के बीच में ड्यू टू आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि वेंट्रिकुलर पासेज यानी कि सेमिलुनर वॉल्व्स के वो में, कॉमनली सीन इन आउटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड HOCM। HOCM बोले तो हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और उसके अलावा कौन सा कार्डियोमायोपैथी उड़े? डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी। और हाँ, आउटिक स्क्लेरोसिस में सुना जाता है। फिजियोलॉजिकली कहाँ कहाँ से? थायरोटॉक्सिकोसिस, एनीमिया, प्रेगनेंसी, फीवर में भी। आउटिक स्टेनोसिस हो सकता है राइट सेकेंडरी स्पेस, पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है लेफ्ट सेकेंडरी स्पेस। ओके, मूविंग ऑन अहेड, कहाँ थे? कॉज जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, TB हो सकता है,
और HIV हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है। लिम्फोमा अलग है, ल्यूकीमिया अलग है। ल्यूकीमिया ब्लड का होता है, लिम्फोमा एक बार देख लेते हैं लिम्फोमा क्या था। लिम्फोमा, ठीक है। ALL BL वो जो था ना, पढ़े थे एग्जाम के लिए वो सब, वो वाला अलग था। वही हॉजकिन लिम्फोमा हो गया, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो गया। नॉन हॉजकिन में नॉन रीड स्टर्नबर्ग सेल, और हॉजकिन लिम्फोमा में रीड स्टर्नबर्ग सेल होता है। यूजुअली कंटिगुअस कंटिगुअस स्प्रेड होता है, बेटर प्रोग्नोसिस होता है। नॉन हॉजकिन में बहुत गंदा प्रोग्नोसिस होता है। ईटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर्स में आ गया EBV इन्फेक्शन, एक्सटीन बार वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी जैसे कि HIV पोस्ट ट्रांसप्लांट। ट्विंकल फेशेस में होता है प्लेनलेस लिम्फेडेनोपैथी जस्ट लाइक TB। बी सिम्टम्स में हो गया फीवर, नाइट स्वेट्स और वेट लॉस, हिपैटोमेगली, प्लूराइटिस, फटीग, एक्स्ट्रा नोडल डिजीज जैसे कि नॉन हिम NHL यानी कि एक्स्ट्रा नोडल डिजीज। GI, स्किन, CNS इन्वेस्टिगेशन में लिम्फ नोड बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड, CBCSR। स्टेजिंग में हो गया स्टेज 1 हो गया, एन ऑर्बर स्टेजिंग करते हैं। एन ऑर्बर न्यूक्लियाई भी मिलता है ना, तो एन ऑर्बर स्टेजिंग। स्टेज 1 में होता है सिंगल नोड रीजन। स्टेज 2 में गया मोर देन टू इक्वल टू टू रीजन सेम साइड ऑफ डायफ्राम। मतलब डायफ्राम के ऊपर मान लो दो है या दो से ज्यादा है, दो तीन चार रीजन्स ऊपर और दो तीन चार रीजन्स नीचे सेम जगह पे। और स्टेज 3 मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह चुन गया डायफ्राम के ग्रुप। स्टेज 4 का मतलब होता है डिसमिनेटेड एक्सट्रानोडल डिजीज एड A/B। बी सिम्टम्स कहने का मतलब हो गया फीवर, प्लूराइटिस और नाइट स्वेट्स फीवर। हाँ, तो ट्रीटमेंट में हॉजकिन रेजिमेंट में क्या देते हैं, ABVD, एड्रियामाइसिन, ब्लेवोमाइसिन, विनब्लास्टिन और डाकार्बाजिन। और रेडियोथेरेपी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, गरीब हुआ तो मार छोड़ दो, रहने दो, रेडियोथेरेपी मत दो, और गर्मी है तो रेडियोथेरेपी मार दो। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में होता है चॉप रेजिमेंट। हॉजकिन लिम्फोमा में हो गया ABVD, एड्रियामाइसिन, ब्लेवोमाइसिन, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन जो होता था याद है, और डाकार्बाजिन। और रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। चॉप रेजिमेंट में हो गया साइक्लोफॉस्फाइन, डॉक्सोरूबिसिन और विनक्रिस्टिन, वही विनब्लास्टिन था ना, वैसे विनक्रिस्टिन है, और प्रेडनिसोलोन। कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है बोन मैरो फेलियर, ठीक है। लिम्फ, पहले लिम्फ नोड का है, नहीं याद रखना, लिम्फोडियम है। लिम्फोमा है मतलब लिम्फोमा, वही लिम्फ मैलिग्नेंट नेओप्लाज्म लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। B सेल्स हो सकता है, T सेल्स हो सकता है, और NK सेल्स हो सकता है। हॉजकिन में रीड स्टर्नबर्ग होता है, नॉन हॉजकिन में रीड वेस्टर्नबर्ग नहीं होता है। हॉजकिन में प्रोग्नोसिस ठीक होता है, कंटिगुअस स्प्रेड होता है। नॉन हॉजकिन में नॉन कंटिगुअस स्प्रेड होता है और एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट होता है, और नॉन हॉजकिन में रीड स्टर्नबर्ग नहीं होता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि डिफ्यूज लार्ज सेल, फॉलिकुलर, बर्किट और मैंटल सेल, चार हो सकता है। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, फॉलिकुलर लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा, मैंटल सेल लिम्फोमा। डिफ्यूज बी लार्ज बी सेल, मैंटल मैंटल सेल लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा, और क्या हो गया फॉलिकुलर लिम्फोमा। EBV इन्फेक्शन, immunodeficiency, HIV, post-transplant, autoimmune disease, radiation, chemicals। क्लिनिकल फीचर्स में हो गया पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी। बी सिम्टम्स जैसे कि फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, प्लूराइटिस, फटीग और डिजीज जो कि GI, स्किन, CNS में होता है। लिम्फ नोड बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया, CBCSR। LDH हो गया प्रोग्नोस्टिक, चेस्ट एक्सरे, CT पेट फॉर स्टेजिंग, बोन मैरो बायोप्सी, इम्यूनोफिनोटाइपिंग। स्टेजिंग हो गया एन आर्बर स्टेजिंग, स्टेज 1 में हो गया सिंगल नोड एक जगह पे। स्टेज 2 में हो गया दो या दो से ज्यादा, दो तीन ऐसे इनसाइड ऑफ डायफ्राम। स्टेज 3 में हो गया बोथ साइड्स ऑफ डायफ्राम। स्टेज 4 में हो गया एक्स्ट्रा नोडल डिजीज। हॉजकिन में हो गया ABVD रेजिमेंट, और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में हो गया चॉप रेजिमेंट। साइक्लोफॉस्फेमाइड, विनब्लास्टिन, डॉक्सोरूबिसिन और प्रेडनिसोलोन। बोन मैरो फेलियर, इन्फेक्शन, ट्यूमर लाइसिन। मेंटल लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा, फॉलिकुलर लिम्फोमा और लार्ज सेल B सेल। ये था क्या कहते हैं मेन कॉजेज ऑफ उसमें अमीबिक डिसेंट्री में। ट्रीटमेंट क्या था, मेट्रोनिडाजोल और डिलॉक्सानाइड फ्यूरिएट, डिलॉक्सानाइड फ्यूरिएट। ओके। जनरलाइज कॉजेज ऑफ लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी में क्या क्या गया, TB, लिम्फोमा, और क्या था एक और, EBV नहीं, HIV। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है, एग्जाम्पल आउटेक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी।
इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर का हो गया, aortic stenosis, पल्मोनरी स्टेनोसिस और कार्डियो, और क्या था, और क्या था, हाँ HOCM। और फिजियोलॉजिकल कॉजेज में आ गया अनीमिया, प्रेगनेंसी, थायरोटॉक्सिकोसिस, इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। LMN फेशियल पाल्सी का कॉजेज क्या क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन, बेल्स पाल्सी सबको पता है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया और पैराटिड ट्यूमर, पैराटिड ट्यूमर और ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है। फिर आता है ट्यूबुलर ब्लीडिंग, ट्यूबुलर ब्लीडिंग का क्या क्या हो सकता है, कंसोलिडेशन, फाइब्रोसिस, कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोंकस। तो मतलब ब्रोंकस का जो छेद है वो काम कर रहा है, बट पेट वो कोलैप्स्ड है, तो उसमें क्या करते हैं, ट्यूबुलर ब्लीडिंग। हाँ, ट्यूब ही खराब हो गया ना, तुम आर्टिफिशियल ट्यूब दे रहे हो। फिर कंसोलिडेशन और फाइब्रोसिस, इन दोनों में भी ट्यूबुलर ब्लीडिंग का होता है। निस्टैग्मस का क्या होता है, इनवॉल्यूटरी रिदमिक आई मूवमेंट होता है, ठीक है। निस्टैग्मस एक बार याद कर लो अच्छे से। निस्टैग्मस होता क्या है, इनवॉलंटरी रिदमिक आई मूवमेंट्स, रिदमिक आई मूवमेंट। तो ये तो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस हो गया, बुढ़ी है, वेट गेन हो रहा है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो रहा है, सिंपल। और उसमें मिक्स एडिमा, क्लिनिकल फीचर में वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब ठंड लगे उसको ज़्यादा, तो उसको ठंड नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है, ओके। फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, उसको स्लो हो जाएगी, मेनोराजिया होगा फीमेल में, एक्सेसिव ब्लीडिंग कहने का मतलब। फिर हॉर्स वॉइस हो सकता है, और नॉन पीडिंग एडिमा और फटीग। इन्वेस्टिगेशंस में TSH रेज्ड होगा, फ्री T4 घटा रहेगा, एंटी TPO एंटीबॉडीज करेंगे, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट क्या करते हैं, लिवोथायरॉक्सिन देते हैं, स्टार्ट लो डोज टाइट्रेट, लाइफ लॉन्ग थेरेपी देना पड़ेगा उसको। शॉर्ट नोट्स आ गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब इतना इतना कम, 10 नंबर का है, कितना नंबर का है, ओके 10 नंबर का। अभी अच्छा आंसर देगा, एक सेकेंड, थोड़ा बढ़िया आंसर मिलेगा हाई क्वालिटी में। सो हाइपोथायरॉयडिज्म है, जनरल में क्या क्या हो गया, वेट गेन, फटीग, लेथार्जी, कोल्ड इंटॉलरेंस, डिक्रीज एपेटाइट। वो हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म में एपेटाइट घटता है, याद आया, पर फिर भी वेट गेन होता है, ठीक है। स्किन एंड हेयर में ड्राई कोर्स स्किन हो जाता है, हेयर लॉस हो सकता है इंक्लूडिंग लैटरल आईब्रोज, लैटरल आईब्रोज का हेयर लॉस हो सकता है, ब्रिटल नेल हो सकता है, पैलर हो सकता है। फेस एंड वॉइस में हो सकता है पफी वॉइस, वही हॉर्स वॉइस जिसको कह रहे हैं। पेरी ऑर्बिटल नॉन पिटिंग एडीमा, लो पिच्ड हॉर्स वॉइस, लो पिच हॉर्स वॉइस, गाढ़ा वॉइस, ओके, पफी फेस, लो पिच हॉर्स हॉर्स वॉइस, हॉर्स वॉइस, स्लर्ड स्पीच हो गया मैक्रोग्लॉसिया के कारण, ओके। कार्डियोवास्कुलर में हो सकता है ब्रैडी कार्डिया, हार्ट बीट लो हो जाएगा, डिक्रीज कार्डियोडायनामिक हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो अगर ब्रैडी कार्डिया हो गया, हार्ट रेट कम हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, तो मान लो आउटपुट भी कम हो गया, कार्डियक आउटपुट। पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकता है सिवियर, सिवियर में पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी हो सकता है, गैस्ट्रिक से एडीमा ना। GI में हो सकता है कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, रिप्रोडक्टिव में मेनोरहाजिया, में एमेनोरिया हो सकता है, लेट में इनफर्टिलिटी हो सकता है, न्यूरोसाइकेट्री में डिप्रेशन, पुअर मेमोरी, स्लो मेंटेशन। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में TSH बढ़ा रहेगा, फ्री T3, फ्री T4 घटा रहेगा, फ्री T4 मेन है। ऑटो इम्यून मार्कर्स जैसे कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस के लिए एंटी TPO एंटीबॉडीज। अदर इन्वेस्टिगेशंस में लिपिड प्रोफाइल बढ़ा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल, और CBC में नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होगा, ECG में साइनस ब्रैडिकार्डिया होगा, हाँ, हार्ट बीट घट जाएगा। और सीरम सोडियम हाइपोनेट्रीमिया कभी कभी हो सकता है। तो ये सब था अदर इन्वेस्टिगेशंस में, लिपिड प्रोफाइल, CBC में क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो क्या क्या फीचर हो गया, पहले हो गया जनरल में वेट गेन, फ्लफ, फटीग, लेथार्जी, लो लो एपेटाइट, कोल्ड इंटॉलरेंस। वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, फटीग, लेथार्जी, और क्या कहते हैं, अ, हाँ, कोल्ड इंटॉलरेंस और एपेटाइट घट जाएगा। स्किन एंड हेयर में स्किन ड्राई, कोर्स नेल हो सकता है, ब्रिटल, और हेयर लॉस हो सकता है आईब्रो का, लेटरल आईब्रो में। फेस एंड वॉइस में हो सकता है पफी वॉइस, पेरी ऑर्बिटल नॉन पिटिंग एडीमा, लो पिच्ड हॉर्स वॉइस हो सकता है, स्लग स्पीच हो सकता है मैक्रोग्लॉसिया के कारण, और लो पफी वॉइस हो सकता है
पफी फेस हो सकता है, होर्स वॉइस हो सकता है, और पेरिऑर्बिटल नॉन पिटिंग एडीमा हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर में ब्रैडीकार्ड हो सकता है, साइनस ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, क्या कहते हैं, साइनस ब्रैडीकार्डिया ईसीजी में दिखेगा। फिर क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट घट सकता है ब्रैडीकार्डिया के कारण, और प्लूरल पेरिकार्डियल फ्यूजन हो सकता है कभी कभी। जीआई में कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, रिप्रोडक्टिव मेनोराजिया, इनफर्टिलिटी, एमिनोरिया। न्यूरोसाइकेट्रिक में डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल फटीग हो सकता है, रिथार्जी हो सकता है, और फॉरगेट हो सकता है, पुअर मेमोरी। थायराइड फंक्शन टेस्ट में टीएसएच बढ़ा रहेगा, टीएसएच बढ़ा रहेगा, बट टी फोर फ्री टी घटा रहेगा। एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज चेक कराएंगे फॉर हाशीमोटो थायराइडाइटिस, एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज। फिर लिपिड प्रोफाइल बढ़ा रहेगा, सीबीसी नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, और ईसीजी में हो गया साइनस ब्रैडीकार्डिया, सीरम सोडियम में हो गया हाइपोनेट्रीमिया सिम्टम्स। मैनेजमेंट कैसे करोगे, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, ग्रेजुअल डोज टाइट्रेशन। ड्रग ऑफ चॉइस होता है लीवोथायरॉक्सिन टी4, लीवोथायरॉक्सिन होता है टी4 बस, और कुछ नहीं। एडल्ट्स में होता है 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। एल्डरली और कार्डियक डिजीज में स्टार्ट लो, 25 to 50 माइक्रोग्राम पर डे, लाइक 30 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं, ऐसा कुछ है ना, 30 to समथिंग लाइक दैट। मान के चलो 100 किलो की औरत है, तो कितना हो गया, 150। तो वही 30 दे सकते हैं माइक्रोग्राम, 60 दे सकते हैं, 90 दे सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। 30, 60, 90 याद रख लो, 30 हो गया लो, 60 और 90 हो गया हाई। क्योंकि 150 kg की तो औरत होगी नहीं, बट स्टिल मान लो 80, 90 kg की भी हुई तो 90 या 100 दे देंगे। तो 30 से 100 के बीच में कुछ देंगे। और 25 से 50 वही जो कह रहे हैं, 30, 50 वो हो गया एल्डरली और कार्डियक डिजीज में, क्योंकि कार्डियक डिजीज नहीं दे सकते, टैकीकार्डिया वगैरह हो गया, बराबर दिया। टीएसएच देते हैं वही 6 से 8 हफ्ते इनिशियली, एम करते हैं नॉर्मल टीएसएच के लिए। और टीएसएच का टेस्ट करेंगे हर वक्त, ताकि टीएसएच का नॉर्मल हो। मिक्सेडीमा कोमा है तो आई, अगर कोमा चल गया है, मिक्सेडीमा कोमा इमरजेंसी में, तो आईवी लीवोथायरॉक्सिन देंगे, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे, और वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मोर देन 25 mm मर्करी एट रेस्ट। कॉज हो गया लेफ्ट हार्ट फेलियर, क्रॉनिक लंग डिजीज सीओपीडी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉजेस का लेफ्ट हार्ट डिजीज, सीओपीडी हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हो गया प्रोग्रेसिव डिस्निया, फटीग, सिंकोप, चेस्ट पेन, लाउड P2। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है क्या, मीन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर है ना, वो 25 से ज़्यादा हो गया। मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हो गया मोर देन 25 mm मर्करी। कॉज क्या हो गया, लेफ्ट हार्ट डिजीज। राइट हार्ट डिजीज अपना पता है क्या होता है, वो जो जेवीपी में होता है, ठीक है। बट यहाँ लेफ्ट हार्ट डिजीज होगा, सीओपीडी में होगा, लंग्स से रिलेटेड जितना कुछ है, लेफ्ट हार्ट डिजीज, सीओपीडी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हो गया प्रोग्रेसिव डिस्निया, फटीग, सिंकोप, चेस्ट पेन, लाउड P2, राइट हार्ट फेलियर, एडिमा, हिपैटोमेगली। राइट हार्ट फेलियर हो गया, एडिमा, हिपैटोमेगली। इन्वेस्टिगेशंस में हो गया क्या, ईसीजी, आरवी, हाइपरट्रोफी, इकोकार्डियोग्राफी, राइट हार्ट कार्टराइजेशन, कैथेटराइजेशन गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया। राइट हार्ट कैथेटराइजेशन, कैथीटर डालेंगे राइट हार्ट में। ईसीजी में हो गया राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी हो गया राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, इकोकार्डियोग्राफी, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन गोल्ड स्टैंडर्ड। हाइपोग्लाइसीमिया हो गया डेफिनेशन, ब्लड ग्लूकोज इज लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कॉज का क्या गया, इंसुलिन ओवरडोज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, इंसुलिनोमा, लिवर डिजीज, सेप्सिस। कॉजेज का क्या हो गया, इंसुलिन ओवरडोज, ब्लड ग्लूकोज हो गया लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड ग्लूकोज जब लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। कॉज का क्या, इंसुलिन ओवरडोज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, इंसुलिनोमा, लिवर डिजीज, सेप्सिस। इंसुलिनोमा, इंसुलिन ओवरडोज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, लिवर डिजीज, सेप्सिस।
क्लिनिकल फीचर्स हो गया स्वेटिंग, ट्रेमर्स, पाल्पिटेशन, कन्फ्यूजन, सीजर और कोमा भी हो सकता है। स्वेटिंग हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, ट्रेमर हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, पाल्पिटेशंस हो सकता है, कन्फ्यूजन, सीजर, कोमा। कन्फ्यूजन, सीजर, कोमा भी हो सकता है। मैनेजमेंट हो गया ओरल ग्लूकोज, कॉन्शियस में खाना देते रहो, अनकॉन्शियस में हो गया IV 50% डेक्सट्रोज दे दो। ग्लूकागॉन इंट्रामस्कुलर इफ IV एक्सेस इज अनअवेलेबल, तो ग्लूकागॉन इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी का रोल क्या है? कॉज गैस्ट्राइटिस। हेलिकोबैक्टर पायलोरी का क्या होता है रोल? क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक का इन्फेक्शन, पेप्टिक अल्सर डिजीज कराता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है, माल्ट लिम्फोमा कराता है। डायग्नोसिस कैसे करता है? यूरिया ब्रेथ टेस्ट कराते हैं, स्टूल एंटीजन टेस्ट कराते हैं, एंडोस्कोपिक बायोप्सी कराते हैं। ट्रीटमेंट होता है ट्रिपल थेरेपी, प्रोटोन पंप इनिबिटर देते हैं, अमोक्सिसिलिन देते हैं और क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं 14 डेज। अमोक्सिसिलिन, प्रोटोन पंप इनिबिटर, क्लेरिथ्रोमाइसिन। प्रोटोन पंप इनिबिटर, अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी डेफिनेशन: न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम ड्यू टू लिवर फेलियर। न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम ड्यू टू लिवर फेलियर हो गया हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है GI ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्लिनिकल फीचर्स हो गया अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, एस्टेरेक्सिस, कंफ्यूजन से कौन हो सकता है। ट्रीटमेंट हो गया लैक्टुलोज रिफाक्सिमिन। ट्रीटमेंट क्या हो गया? लैक्टुलोज देंगे, रिफाक्सिमिन देंगे, ट्रीट करेंगे प्रेसिपिटेटिंग कॉज को। सो हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी क्या हो गया? न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम ड्यू टू लिवर फेलियर। प्रेसिपिटेट फैक्टर क्या हो गया? GI ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और कॉन्स्टिपेशन। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण, फिर GI ब्लीडिंग के कारण और इन्फेक्शन के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण। क्लिनिकल फीचर में होगा अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, एस्टेरिक्सिस और कंफ्यूजन से हो सकता है कोमा। ट्रीटमेंट हो गया लैक्टुलोज और रिफाक्सिमिन। ट्रीट करेंगे प्रिसिपिटेटिंग कॉज को। हेपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस क्या है? HBs एंटीजन इन्फेक्शन के लिए, एंटी HBs करेंगे इम्यूनिटी के लिए, HBe एंटीजन करेंगे इन्फेक्टिविटी के लिए, एंटी HBc करेंगे पास्ट एक्सपोजर के लिए और HBV DNA करेंगे वायरल रेप्लिकेशन के लिए। HBs एंटीजन हो गया इन्फेक्शन के लिए, एंटी HBs हो गया इम्यूनिटी के लिए, HBe एंटीजन हो गया इन्फेक्टिविटी के लिए, एंटी HBc हो गया पास्ट एक्सपोजर के लिए, HBV DNA हो गया वायरल रेप्लिकेशन के लिए। HBs एंटीजन हो गया इन्फेक्शन के लिए, एंटी HBs हो गया इम्यूनिटी के लिए, HBe एंटीजन हो गया इन्फेक्टिविटी के लिए। HBs एंटीजन हो गया इन्फेक्शन के लिए, HBs एंटी HBs हो गया एंटीबॉडी फॉर इम्यूनिटी, HBs एंटीजन हो गया इन्फेक्शन के लिए, एंटी HBs एंटीबॉडी हो गया इम्यूनिटी के लिए, HBe एंटीजन हो गया इन्फेक्टिविटी के लिए, एंटी HBc हो गया पास्ट एक्सपोजर, HBV DNA हो गया वायरल रेप्लिकेशन। राइट अकाउंट ऑन हेमोलाइटिक एनीमिया etiology एंड इन्वेस्टिगेशंस। etiology हो गया हेमोलाइटिक एनीमिया का थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी, हेरिडिटरी फेरोसाइटोसिस। अक्वायर्ड हो गया ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, मलेरिया, ड्रग्स, प्रोस्थेटिक वॉल्व्स। ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया AIHA। अक्वायर्ड में क्या क्या? मलेरिया, ड्रग्स, प्रोस्थेटिक वॉल्व्स। अक्वायर्ड में क्या क्या हो गया? ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, मलेरिया, ड्रग्स, प्रोस्थेटिक वॉल्व्स। इनहेरिटेड में क्या हो गया? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी, हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। इनहेरिटेड में क्या हो गया? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी और हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। क्या क्या हो गया? थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी,
हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और G6PD डेफिशिएंसी। ये क्या हो गया? इनहेरिटेड। फिर क्या हो गया? अक्वायर्ड में हो गया ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, मलेरिया, ड्रग्स और प्रोस्थेटिक वॉल्व्स। इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या होगा? CBC एनीमिया करोगे, और पर्टिकुलर साइट बढ़ जाएगा, LDH बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, पेरिफेरल स्मेयर करोगे और कूम्स टेस्ट करोगे। गाउट का कॉजेज क्या क्या होगा? इंक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन, डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन। ओके, या तो प्रोडक्शन बढ़ गया या रीनल एक्सक्रीशन घट गया। फिर तीसरा हो गया अल्कोहल और चौथा हो गया डायरेटिक्स। ट्रीटमेंट में होगा acute अटैक में NSAIDs, कोल्चिसिन दोगे, हाँ कोल्चिसिन देते हैं गाउट में, याद है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, NSAIDs, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और कोल्चिसिन। क्रॉनिक में दोगे एलोपिरिनॉल, फेविक्सोस्टैट। ठीक है, फेविक्सोस्टैट, स्टैटिन अलग है, स्टैटिन देते हैं कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए, ये अलग है। यहाँ स्टैट है, स्टैटिन नहीं, याद रखना, फेविक्सोस्टैट। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्रॉनिक गाउट के लिए। गाउट को कुछ रिच मैंस वो भी कहते हैं ना, अल्कोहल का और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से उसका वो कॉरेस्पॉन्डेंस है, और मेल मेल जेंडर से भी कुछ गाउट का है, तो उसका है ट्रीटमेंट में। अच्छा, ट्रीटमेंट में करते हैं एक्यूट अटैक में NSAIDs, कोल्चिसिन और स्टेरॉइड्स। अच्छा, H पाइलोरी का ट्रीटमेंट क्या था? H पाइलोरी का ट्रीटमेंट था ट्रिपल रेजिमेंट देते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, ओमिप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, वो जो HCl को कम करेगा, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, अमोक्सिसिलिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन। क्लोरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन वो सब वो है, मैक्रोलाइट्स है। माइसिन कहने का मतलब 14 डेज के लिए क्लोरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ट्रीटमेंट हो गया लैक्टुलोज रिफैक्सिनिन, हीट प्रेसिपिटेटिंग कॉज। ठीक है, ट्रीट करने के लिए हेपेटाइटिस में लैक्टुलोज रिफैक्सिनिन दे रहे थे। हेपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस करने के लिए HBs एंटीजन फॉर इन्फेक्शन, anti-HBs एंटीबॉडी फॉर इम्यूनिटी, HBE फॉर हो गया, HBs था वो सरफेस वाला, HBE हो गया इन्फेक्टिविटी के लिए, anti-HBC हो गया फॉर पास्ट एक्सपोजर, और HBV DNA हो गया वायरल रेप्लिकेशन के लिए। DNA हो गया रेप्लिकेशन के लिए, कहीं वायरस रेप्लिकेट तो नहीं कर रहा। हीमोलिटिक एनीमिया में इन्वेस्टिगेशन CBC एनीमिया करोगे, और LDH और वो बढ़ जाएगा ना, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, पता नहीं क्यों। अच्छा हाँ, डायरेक्ट बिलिरुबिन तो वो है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों बढ़ता है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव है जॉन्डिस में। पर हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब जॉन्डिस होगा, तो हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है ना, प्री हिपैटिक जॉन्डिस का कारण। तो वही इंडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ सकता है, LDH बढ़ सकता है, और कूम टेस्ट तो होता ही है, और CBC में एनीमिया मिलेगा तुमको। और पेरिफेरल स्मेयर कर लो ताकि पता चल जाए सेल क्या क्या है। गाउट का कॉजेज में यही, या तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है या फिर यूरिक एक्सक्रीशन घट रहा है। और यूरिक एक्सक्रीशन घटने का कारण क्या हो सकता है? वो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने का एक और कारण है अल्कोहल, और एक्सक्रीशन घटने का कारण डायूरेटिक्स। तो दोनों का एक वो भी एग्जांपल से याद रख सकता है, अल्कोहल डायूरेटिक्स को। ट्रीटमेंट एक्यूट अटैक में दोगे NSAIDs, कोल्चिसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और क्रोनिक अटैक में दोगे एलोपिरिनॉल, फेविक्सोस्टैट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पार्किंसोनिज्म में लीवोडोपा, कार्बिडोपा देते हैं मिला के, डोपामिन एंड एगोनिस्ट जैसे कि प्रामिपेक्सोल। माओ इनिबिटर जैसे कि सेलेजिलिन, एंटीकोलिनर्जिक, COMT इनिबिटर्स। सर्जिकल में होता है डीप डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। फेशियल नर्व पाल्सी हो गया। लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी में क्या क्या था? एक तो था बेल्स पाल्सी, एक था ओस्टाइटिक मीडिया, ओस्टाइटिस मीडिया, और एक और क्या था? ओटाइटिस मीडिया था। कहाँ गया? हम्म, या और पैरेटिड ट्यूमर था लोअर मोटर न्यूरल पाल्सी में। ठीक है, ड्रग्स फॉर जनरलाइज टोनी क्लोनिक सीजर्स हो गया, सोडियम वालप्रोएट, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, लिवर्टिरासिटाम, फेनोबारबिटाल। फेशियल नर्व पाल्सी में हो गया बेल्स पाल्सी हो सकता है, एलिमेंट पाल्सी और फेशियल नर्व पाल्सी दोनों अलग है ना। बट एलिमेंट पाल्सी का एग्जांपल में क्या क्या था? फेशियल नर्व पाल्सी में फेशियल नर्व पाल्सी में अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर दोनों हो सकता है। कॉज हो सकता है बेल स्ट्रोक, बेल्स पाल्सी और स्ट्रोक।
ट्रीटमेंट हो सकता है स्टेरॉइड और आई केयर। बेल्स पाल्सी, लोअर मोटर अपर न्यूरॉन दोनों हो सकते हैं, फेशियल पाल्सी, स्ट्रोक हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है और लोअर मोटर न्यूरॉन हो सकता है, वही जो लोअर मोटर न्यूरॉन में पड़े चारों। बेल्स पाल्सी स्ट्रोक हो गया अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के लिए, ओटाइटिस मीडिया और पैरेटल मोटर हो गया, पैरेटल ट्यूमर हो गया लोअर मोटर न्यूरॉन के लिए बेल्स पाल्सी के साथ। क्लिनिकल फीचर हो गया इनएबिलिटी टू क्लोज आइज, भेंगा साला, डेविएशन ऑफ द माउथ हो सकता है, एंगल, ओके, लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, एंटीरियर 2/3, वो टंग का कुछ होता है ना नर्व सप्लाई, तो वही, वो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व वगैरह। ट्रीटमेंट हो सकता है स्टेरॉइड, आई केयर, फिजियोथेरेपी। ड्रग्स फॉर जनरलाइज टोनिक फेनिटोइन और सोडियम वालप्रोएट ड्रग ऑफ चॉइस है। टोनिक सीजर है तो सोडियम वालप्रोएट देंगे, सोडियम डेफिशिएंसी। एक चूतिया कोई देहाती था, कोई बिहार में कोई बहुत देहाती आयुर्वेदा का था, तो सोडियम वालप्रोएट, वो सोचा सोडियम डेफिशिएंसी हाइपोनेट्रीमिया के ट्रीटमेंट में दे रहे हो, एक से एक लोडू लोग है आयुर्वेद और हेमो वो में होम्योपैथ में। खैर, सोडियम वालप्रोएट ड्रग ऑफ चॉइस है टोनिक सीजर का, वो सीरस का ड्रग है, फेनिटोइन भी, और कार्बामेज़ेपिन, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन है, फिर फिनोबार्बिटॉल भी हो गया। दैट वाज इट। दिस वाज पेपर नंबर मार्च अप्रैल 2021।